Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम CSET मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के 2020 से 1994 तक के एंड 2021, 2022 एंड 2023 के सेपरेट सॉल्व किए गए हैं पेपर्स। तो आइए देखते हैं मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है A is 16th from the left hand in a row of boys and V is 18th from the right. From the left hand in a row of boys and V is 18th from the right hand. So left and right. So this is left and this is right. And A is 16th and V is, this is from here. And V is 18th from this side. Counting is being done. G is 11th from A towards the right. So towards the right, and third from V towards the right hand. So third from G will be here then, and it will be third from here, counting from here, and 11th from here. How many boys are there in the row? So if we know this much, up to A there are 16th, V to R there are 18th. If we know number of boys between A and V, between A and V, then we can get the total number. 16 plus 18 is 4, and now in between AV. So this is 16th and this is third from V and 11th from A. So we can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is G. And this is third from V. So 1, 2, 3. So this is V and this is A. So this has been counted in 16 और ये वाला काउंट हो गया है 18 में। बाकी बचे ये स्टूडेंट्स। सो ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 7। सो इतने स्टूडेंट्स हैं विच इज 41। सो आंसर इज बी। A frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time the frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter. What is the number of jumps required for the frog to come out of the well? तो लास्ट वाला हम नहीं काउंट करेंगे। सो यहाँ दिया गया है कि वेल जो है 4.5 मीटर्स है, तो इसे पहले सेंटीमीटर में बदलते हैं 450 सेंटीमीटर्स। अगर देखें कि फ्रॉग जो है एक बार में इफेक्टिवली 15 सेंटीमीटर ही चलता है और लास्ट वाले में वो इससे जब जंप करेगा तो बाहर आ जाएगा, स्लिप नहीं करेगा, इसकी बाउंड्री पर आ जाएगा। सो ये लास्ट वाले 30 सेंटीमीटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 450 सेंटीमीटर माइनस 30 420 सेंटीमीटर्स। तो उसे इतना ही जंप करना है। तो एक बार में करता है 15 एंड 420 करेगा। एक दिस 420 अपॉन 15 डिवाइड करते हैं तो दिस कम्स 28 जम्प्स प्लस 1 जो एक लास्ट जंप है, तो 29 जम्प्स में वो आउट हो जाएगा। आंसर इज बी। इन ए पर्टिकुलर ईयर 12th January is a Sunday, and then which one of the following is correct? 15th July is a Sunday if the year is a leap year. 15th July is a Sunday if the year is not a leap year. And 12th July is Sunday if the year is not a leap year. 12th July is not a Sunday if the year is a leap year. तो लीप ईयर है तो 29 डेज हैं, और लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज हैं। एंड
जनवरी में 12th जनवरी के बाद जो दिन बचते हैं that is 19 days, प्लस फरवरी में या तो होगा 28 और 29, so we'll add one more later on, plus 31 March, April is 30, May is 31, June is 30, जुलाई में या तो 12 होगा या 15 होगा, so we'll add later, we'll see with 12. So this total comes 30, 30, 60, and then we have 62 and 12 and 28 is 40 plus 90, 181, and we divide it by 7. अगर एक दिन और होगा तो this will become 6. This will be divisible. अभी 1 day 6 days इसमें और आ रहे हैं. 41 divided by 7 means 35 plus 6. One more day is required to become it a Sunday again. So we make it 9, 29. Then it will be 0 remainder. So 12th is a Sunday if the year is a leap year. C is the answer. And we need not to do now 15 because 3 days difference is there and that won't be divisible by 7. One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers? यहाँ हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो सम दिया गया है 195 वो बेसिकली रफली 20 और 19 नंबर्स के सम के इक्वल है. तो अगर हमें ये आइडिया है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 20 नंबर्स हैं मींस 20 पेजेस हैं तो उनका सम कितना होगा. एग्जैक्टली अगर हम देखें 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. n नंबर्स का सम इज इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करें सो दिस कम्स 210. सो 195 से ज्यादा है. अब हम 19 पेजेस कर लेते हैं. ये हमारी बैकग्राउंड हमें इंफॉर्मेशन है कि दिस विल बी अराउंड 195 और ये हमने वहां से लिया. हाउ टू? सो वी हैव टू हैव सम आइडिया दैट समेशन ऑफ 20 numbers and summation of 19 numbers will be near to this. Now 19 का check करें so this will be 19 into 19 plus 1 by 2. So this will be 190 and 195 इसके बीच में आ रहा है. इसका मतलब 19 से तो ज्यादा ही हुए पेजेस. 20 पेजेस हैं क्योंकि 195 सम है. अब एक पेज और आ गया और वो हो जाएगा कितने के डिफरेंस के बराबर 210 माइनस 195 विच इज 15. तो 15 जो सम आएगा दो पेजेस के मार्क होंगे दैट इज 7 and 8 मीन्स B is the answer. In a class there are 3 groups A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? तो ग्रुप्स तो क्लास में हैं. क्लास में A, B, C ग्रुप हैं तो अगर A से B या B से C में शिफ्ट भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज क्लास में ही रहे वो स्टूडेंट्स. तो देयर वोंट बी एनी चेंज, इट रिमेन्स द सेम. C इज द आंसर. डायरेक्शंस हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए. फॉर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
6 students A, B, C, D, E and F appeared in several tests. Either C or F scores the highest, or F. Whenever C scores the highest, then E scores the least. F scores the highest, then whenever C scores the highest, E is least. Whenever F scores the highest, B scores the least. B. In all the tests, they got different marks. D scores higher than A. D is somewhere higher than A. But they are close competitors. A scores higher than B. Yes, A scores higher than B. So B will be here. C scores higher than A. C will be here and C scores higher than A. If S stands second in the ranking, then the position of B is F is here. A, B, C, D, E, F. Position of B is fifth. So answer is C. This is not possible because F is not getting highest, F is getting second. So F may be here. So the answer is C. जैसे कि सेम डायरेक्शंस हैं, सेम डेटा है, तो वही फिगर ली और इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछ रहा है एंड में क्वेश्चन के इफ बी स्कोर्स द लीस्ट देन रैंक ऑफ सी विल बी, तो बी स्कोर लीस्ट इस केस में कर रहा है जो कि एफ टॉप है. सी की पोजीशन पूछ रहा है, तो अगर हम दोबारा से थोड़ा सा डेटा पढ़ें, सी स्कोर्स तो हाई नहीं कर रहा है, एफ स्कोर्स हाईएस्ट, बी इज लीस्ट. दिस इज द करेक्ट. इफ all the tests they got different, D scores higher than A, so D is higher than A, but they are close competitors. A scores higher than B, A is higher than B, C scores higher than A. अब वो C यहाँ भी हो सकता है और D और A, तो C यहाँ भी हो सकता है. E की कोई बात नहीं कह रहे हैं, तो E को हम लीस्ट में मान रहे हैं क्योंकि वो कम ही ऑब्टेन कर रहा है. तो सी की फिर ये पोजीशन सेकंड हो गई, या फिर अगर यहाँ नहीं है तो फिर डी पहले आएगा और डी के बाद ये सी आएगा, तब डी सेकंड हो जाएगा. तो सेकंड या थर्ड पोजीशन हो गई. सो डी इज द आंसर. यहाँ भी सेम डायरेक्शन से और यहाँ क्वेश्चन है ई इज रैंक्ड थर्ड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब ई फिगर फिर से बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये पहला केस है और ये दूसरा केस है. अब सी वाली पोजीशन हमें देखनी है, सेकंड थर्ड है, और बाकी क्या कहा गया है, दिस इज ई इज रैंक्ड थर्ड. तो सेकंड थर्ड हमने कहा था, तो मतलब कि थर्ड की जगह पर ई आ गया है. इसका मतलब डी जो यहाँ हमने लिखा है यहाँ पर ई आ गया है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ई गेट्स मोर देन सी एंड सी गेट्स मोर देन ई. तो ये दोबारा से बनाते हैं फिगर. इसमें एफ तो टॉप है, बी लीस्ट है, ए अबव देन बी है और डी बी अबव है. तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि सी जो है या तो सेकंड है या थर्ड है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे ई आ गया तो सेकंड पे सी हो गया. तो ये सिचुएशन हो गई. तो यहाँ पर ई गेट्स मोर देन सी, ये गलत हो गया. सी गेट्स मोर देन ई, सो बी इज द करेक्ट आंसर. एंड ए रैंक्ड फोर्थ, ए रैंक्ड फिफ्थ हो गया एंड डी रैंक्ड फिफ्थ, तो ये गलत हो गया. सो बी इज द आंसर. Mr. X has 3 children. The birthday of the first child falls on 5th Monday of April. That of the second one falls on the 5th Thursday.
fifth Thursday of November. Fifth Monday means 7 into 4, 28 days. So 29th और 30th अप्रैल को पहले का जन्म है जो कि मंडे है, तो बर्थडे इज मंडे. देन फिफ्थ थर्सडे मीन्स अगेन 29th और 30th नवंबर, क्योंकि फिफ्थ थर्सडे. सो इनमें से किन्हीं डेज में बर्थ हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड का. एंड फिर हमें निकालना है ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर. सो 20th दिसंबर अगर हम देखें मंडे एंड थर्सडे मीन्स 1 2 ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 मीन्स 4 - 1 3 डेज का डिफरेंस है दोनों चाइल्ड में. और हम यहां से काउंट करें अप्रैल के बाद, अगर हम या तो हम 29 ले सकते हैं या 30th ले सकते हैं, तो हम 30th ले मान लें अभी, और हम 29th कर लेंगे अगर हमें 3 डेज से फर्क आया. सो 30th अप्रैल को बर्थ है, इसका मतलब मई का 31, जून का 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, August 31, and November is 29th or 30th. So we take 29. Now we count whether remainder is there or not. So 30, 30, 60, and ये 4 times 31 है, तो 4 and 12 and 29. So total is 3, 1 and 2. और अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो 3 दिन का डिफरेंस आ रहा है. 2 10 कट हो जाएगा, 3 days आर रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज 3. इट मीन्स दिस seems okay that we take 30th and we take 29th. Now once we have fixed कि ये तारीख है उनके बर्थडे की, सो रिमेनिंग डेज आर 29th of November हो गया, देन 30th नवंबर 1 डे, और 20 दिन 20 दिसंबर तक, तो 21 डेज. और ये भी अगर हम डिवाइड करें 7 से तो 0 रिमाइंडर आ गया. इट मीन्स ये वाला दिन जो 29th ऑफ नवंबर है, यहां से और 20th दिसंबर तक रिमाइंडर 0 मीन्स सेम डे हो गया. सो दिस इज थर्सडे. 0 ऑड डे है, सो डेट इज नाउ 20th दिसंबर इज थर्सडे. सो आंसर इज बी. In a school 60% students play cricket. A student who do not play cricket plays football. Every football player has got a two-wheeler. Which of the following conclusions can be drawn from the above data? 60%. So it says 60% play cricket. In a school, 60% students play cricket. A student who do not play cricket plays football. So do not play. Cricket plays football. Every football player has got a two-wheeler. So two-wheeler. But it is not telling that cricketer. Which of the following conclusions cannot be? So this is important, cannot be drawn from the above data. 60% of the students do not have two-wheelers. तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया इनके पास है या नहीं, ये तो नहीं कहा गया. सो वी कैन नॉट से. नो क्रिकेटर हैज ए टू-व्हीलर, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. इतना कहा गया है कि एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट ए टू-व्हीलर. क्रिकेट प्लेयर के बारे में नहीं कहा गया. क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल. सो यहाँ पर जो क्रिकेट खेलते हैं वो
फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं ये नहीं कहा गया, लेकिन इतना कहा गया है जो नहीं खेलते हैं वो खेलते हैं और जो खेलते हैं वो खेलते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहा गया। तो हम इनमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। 1 2 3, सो डी इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की बात है कि जो बात एक सेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए कही गई, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर सेक्शन अल्टीमेटली और इम्प्लिसिटली। जैसे कि जब ये कहा गया कि क्रिकेट प्लेयर 60% हैं और जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं कि या नहीं। सो ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि क्लियरली मेंशन नहीं किए गए हैं, सो उसको ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours. The clock was set right to show the correct time at 8 a.m. on Monday. When the clock shows the time 6 p.m. on Wednesday, what is the correct time? So it is 8 a.m. on Monday. And we have 6 p.m. on Wednesday. And it is telling 10 minutes fast in 24 hours. So अगर हम यहाँ आवर देखें, 8 o'clock से शुरू होके 8 o'clock ट्यूसडे 24 आवर्स हो गए, वेडनेसडे को 8 o'clock 24 आवर्स हो गए, एंड देन वेडनेसडे में 8 o'clock से 6 o'clock इवनिंग, ये मॉर्निंग से इवनिंग में जो टाइम हुआ वो हुआ 12 बजे तक 4 घंटे और फिर 1 से 6 10 आवर्स ही हो गए। सो प्लस 10, सो ये हो गया 58, 48 प्लस 10 58 आवर्स। सो टोटल जो वॉच चली वो 58 आवर्स चली। अब हमें देखना है कि 24 आवर्स में तो तेज हो जाती है 10 मिनट्स, सो 58 आवर्स में 10/24 इंटू 58। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस कम्स 2 times 48, 10 बचा, 100 को जब 24 से डिवाइड किया तो 4 times जाएगा, एंड देन रफली 1 time और। तो ये 24 मिनट हम कह सकते हैं, 24.1 मिनट। सो 24.1 मिनट, और अभी वो दिखा रहा है 6 o'clock। सो 6 o'clock में से हम 24 मिनट घटा दें, सो दिस विल बी 5 o'clock and 36 minutes. So A is the answer. Which year has the same calendar as that of 2009? सेम कैलेंडर होगा जबकि 7 days का डिफरेंस हो, तभी तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा। और 7 days का डिफरेंस कैसे हो सकता है? हमारे पास जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 days है, 1 odd day होता है। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स और 1 डे आता है। सो 1 डे ऑड डे है, और 366 लीप ईयर है। जब इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 ऑड डेज आते हैं। सो कुल मिला के हमें 7 डेज बनाने हैं, तो 7 डेज होंगे, जबकि 5 तो नॉर्मल ईयर्स हो और 1 जो है लीप ईयर हो, तो 7 हो जाएगा। यहाँ से 2 डेज आएंगे, 1 लीप ईयर और 5 नॉर्मल ईयर्स जो हैं, तो 7 डेज आ गए। इट मीन्स 6 ईयर्स हमें जोड़ने हैं सेम कैलेंडर ऑब्टेन करने के लिए। सो 2009 प्लस 6 इज 2015, तो आंसर हो गया डी। In 2002, Meenu's age was 1/3 of the age of Meera's, whereas in
2010 Minu's age was half of the age of Mira. What is Minu's year of birth? So Minu की एज x है, so let's say मीरा की एज y है, तो मीनू की जो कि x है is y/3. ये मीरा की एज है and this is मीनू's in 2002. In 2010 मतलब 8 years बढ़ गए, जो कि y/3 + 8, और मीरा की हो गई y+8. इस Minu's age was half the age of Mira's. So इसका half करें is equal to x + 8. So we cross multiply, y+8 is equal to 2 into x + 8. और यहाँ से हम लें LCM, 3x + 8 is equal to y + 24. So x + 8 is equal to y + 8/2 is equal to y + 24/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3y + 24 is equal to 2y + 24 into 2, 48. So y is equal to 24. What is Minu's year of birth? Y is 24, then it is in 2002 Mira's age y, and x will be y/3 means 8. So 2002 minus 8 years, that is 1994. So answer is B. A simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, etc. results in a sequence with respect to prime numbers. So अगर एक घटाएं, 13 is prime, then 18 में से एक घटाए 17, 19, these are, so subtract 1. Which of the following is the next number in the sequence? तो हम देख रहे हैं कि 14 के बाद 18 में मतलब 4 का डिफरेंस 18, then we have 22 का डिफरेंस. So this is 14, 18, 20, 24, 30, 32. A simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, this results in a sequence with respect to prime numbers. So 14 में से एक subtract करें तो prime number आ जाएगा 18 में से एक. So this is 14, 18, 20, 24, 30, 30. सब इसमें से भी एक करें 31, 21. So ये सब prime numbers आ गए. 19, 17, 13. तो अगला भी प्राइम नंबर होगा, तो 33, 34, 35, 36, 37 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर. तो 37 में एक जोड़ देंगे तो 38 इज द डिजिट. सो आंसर इज सी. इन द सीक्वेंस हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर विच आर नॉट immediately preceded by 3 but are immediately followed by 7. So not and preceded by 3. So यहाँ 3 नहीं है, इससे पहले 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए. but are immediately followed by 7, तो इसके बाद 7 है. यहाँ तो precedent है 3, तो ये नहीं होगा. Then we have this 5. So यहाँ भी 3 है और बाद में 7 है. So only 1 is the answer. A is the answer. What is x in the sequence this? So 4. अगर हम देखें ये बिल्कुल क्लियर दिख रही है. 16 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 36 6 स्क्वायर, then 8 square,
और बीच में यहाँ ये 196, 144 टेल स्क्वायर एंड दिस इज 100 10 स्क्वायर and then we have 196 is 14 square. So next will be ये दो का डिफरेंस आ रहा है, so means again it will be 64 8 स्क्वायर. इधर से दो इंक्रीज हो रहे हैं और इधर से दो डिक्रीज हो रहे हैं, so 64 B is the answer. A watch loses 2 minutes in every 24 hours. Another watch gains 2 minutes in every 24 hour. So इसमें +2 हो गया और एक में -2 हो गया. So total difference 4 minutes in 24 hours between these two watches. At a particular instant, the two watches showed an identical time. And 24 hours में 4 minutes का difference हो गया. What is the following statements is correct if 24-hour clock is followed? The two watches show the identical time again on completion of 30 days. Show the identical time again on completion of 90. Identical time on 120. None of the above. 24 hours में 4 minute का difference हो गया. तो जब डिफरेंस अगेन 24 आवर का होगा, आवर्स का होगा, तब सेम टाइम होगा. इन बिटवीन में तो डिफरेंस ही होगा. तो 24 आवर्स कितने मिनट हो गए? 24 इंटू 60 1440 मिनट्स. इतने मिनट के बाद सेम टाइम होगा. और इन्हें दिन में कन्वर्ट करना है तो 24 घंटे में 4 मिनट 24 घंटे में विच इज 1 डे. सो ये 1 डे हो गया. और हमें निकालना है 1440 कितने डे में होगा. 1/4 1 डे अपॉन 4 इंटू 1440. तो ये आएगा 360 डेज में. सो नन ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. Shahid and Rohit start from the same point in opposite directions. Rohit and Shahid start from the same point in opposite directions. After each 1 kilometer, Shahid always turns left and Rohit always turns right. So it turns left 1 kilometer. And then 1 kilometer, and then left, and this turns right 1 kilometer, 1 kilometer. Which of the following statements is correct? After both have traveled 2 kilometers, the distance between is 4 kilometers. No, it will turn right again and then will come here. This is 1 kilometer, this is 1 kilometer. So they meet after each has traveled 3 kilometers. Yes, 3. They meet for the first time after each has traveled 4 kilometers. They go on without ever meeting again. So C is the answer. After B is the answer. After 3 kilometers they meet again. Consider the following statements. There are 6 villages A, B, C, D, E and F. F is 1 kilometer to the west of D. So we take north, south, east, west. F is 1 kilometer to the west of D. B is 1 kilometer to the east of E. A is 2 kilometers to the north of. C is 1 kilometer to the east of A. D is 1 kilometer to the south of A. So we extend it. D is here. Which 3 villages are in a line? A, D, E.
So answer is B. Location of B is north of A and location of C is east of A. The distances AB and AC are 5 kilometers and 12 respectively. The shortest distance in kilometer between the locations B and C is. So here we have B. We will take same north, south, east, west. Location of B. B is here, is north of A. A is here. And location of C is east of A. C is here. AB and AC. AB is 5 and AC is 12. So we have to find out B and C. This. So this is 90 degrees, so 5 square plus 12 square under root. That is 13. So answer is B. BC square is equal to 5 square plus 12 square and under root of this, which is 25 plus 144. BC is under root 5 square plus 12 square. So 25 plus 144 under root, and this comes 13. Consider that A is taller than B, C is taller than A, D is taller than C, E is the tallest of all. If they are made to sit in the above order of their height, who will occupy the mid position? So A is taller than B, C is taller than A, C is here, D is taller than C, so D is above than this, D is here. E is the tallest of all, so E is above than this. So the middle is C. So answer is C. 5 people, A, B, C, D and E are seated about a round table. C is seated. Every chair is spaced equidistant from adjacent chairs. C is seated next to A. A is seated 2 seats from D. B is not seated next to A. Which of the following must be true? D is seated next to B. Yes, because if we put E here, then B cannot be here, E will be here. So this is correct. D is seated next to B. And E is seated next to A. Yes, this is also correct. So both 1 and 2. So C is the answer. Given that A is brother of B, C is father of A and B are brothers, C is father of A, D is brother of E is daughter of B, then the uncle of D is A. A is the answer. The houses of A and B face each other on a road going north-south. A and B, they are facing each other, and this road is going north-south as figure is given. A is being on western side, so A is here and B is here. A comes out of his house, so A came out, and then he turns left and travels 5 kilometers, so this is 5. Turns left and then A and B face each other on a road, so this is the road and they are facing opposite. A is on western side, so A is here, B is here.
A comes out of his house, turns left and travels 5 kilometers. So came out, turn left and 5 kilometers. Turns right and travels 5 kilometers to the front of D's house. So 5, right is this, then 5, and somewhere here D's house. B does exactly the same and reaches the front of C's house. So came out, turned left 5, then turned right 5, and here C's house. In this context, which one of the following statement is correct? C and D live on the same street. C is here and D is here. We cannot say that this is the same street. It is not. And this is the road, so it is not an street. So C and D, they don't live on the same street. C's house faces south. So as we have seen, south is this side. So it is not facing south. This is south, not facing. The houses of C and D are less than 20 kilometers apart. 5 is this and 5 is this, so 10 kilometers. So yes, it is true, C is true. None of the above, so C is the answer. 6 persons A, B, C, D, E and F are standing in a row. C and D are standing close to each other, C and D, or it may be D and C. Alongside E. So E may be here or E may be here, near to C. अगर इधर करेंगे तो सेम बात हो जाएगी. B is standing beside A only. A and B or A, B. Only means ये बीच में नहीं हो सकता B. So it will be on this side because A only. A is fourth from F. A is fourth from F. 1, 2, 3, fourth. 1, 2, 3, fourth. From F it is fourth means this is the correct. And in this case it will be here. Who are standing on the extremities? B and F. So this is the answer, B and F. C is the answer. A, B, C, D, E and F. 5 are there. Not necessarily in that order are sitting in 6 chairs regularly placed around a round table. It is observed that, so we take a round table and 6 chairs are there, so 60-degree angle. A is between D and F. C is opposite to D. D and E are not on neighboring chairs. So E is here. So B will be here. Which of the following must be true? A is opposite to B. No. D is opposite to E. No. C and B are neighbors. No. B and E are neighbors. Yes. So D is the answer. In a meeting, the map of a village was placed in such a manner that southeast becomes north, northeast becomes west, and so on. So north, south, east, west. Southeast becomes north. Southeast is this. It becomes north. Northeast is this. This becomes west. So this is 90 degree, this is 45 degree. So 135 degree change. Here also this is 135. What will south become? South will be, because rotation is in this side,
So it will be 90 degree, and here it will be northwest. Northwest is C. A person travels 12 kilometers due north. So north, south, east, west. So 12 kilometers on this side. And then 15 kilometers due east. 15 is here. After that 15 kilometers due west. So west is then coming back to this side. This side again, back. And then 18 kilometers due south. So 18 kilometers on this direction. How far is he from the starting point? Starting was here, so it is 18 minus 12, that is 6 kilometers. A is the answer. A is the answer. A person starts from a point A and travels 3 kilometers eastwards to B. So it starts from A and 3 kilometers eastwards to B, and then turns left and travels thrice the distance in reach C. So means 9 kilometers. This is C. He again turns left, so left, and travels 5 times the distance he covered between A and B. So 15. 5 times means 3 into 5. 5 times of AB, 3 kilometers, 3 into 5. And reaches his destination D. D is here. Then shortest distance between the starting point and destination is, so we will like this and this. So this is 9 and this is 12, because 15 minus 3, this is 12. So we have this AD is equal to under root 9 square plus 12 square. So which is 81 plus 144 under root of this. And this is basically 225 under root, and this is 15 kilometers. So answer is C. Answer is C. Examine the following relationships among members of a family of 6 persons A, B, C, D, E and F. The numbers of male equals that of females, means 3 each. A and E are sons of F. So A and E are sons of F, and these are males. D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl. So D is female, and this is having 2, male and female. This is female. So 2 males are already there. B is the son of A. So B is son of A. So this is also male. So 4 male cannot be there. It means this boy, which is boy, and this is girl. So this boy and this B are same. Then 3 males will be there. There is only 1 married couple in the family at present. Which one of the following inferences can be drawn from the above? A, B and C are all females. No, because A is male son. A is the husband of D. This may be true because then this
boy, and then B may be same. B and E and F are children of D. F is father of, so it cannot be. D is the grandfather of F. No, it cannot be. D is a female. D is the granddaughter of F. No, it cannot be. So the A and D are, this is a couple, so B is the answer. A, B, C, D, E, F and G are members of a family consisting of 4 adults and 3 children, 2 of whom F and G are girls. So F and G are girls. A and D are brothers. A and D are brothers. A is a doctor. E is an engineer. E is an engineer. Married to one of the brothers. So E may be married to A or D. And has 2 children. So 2 children. B is married to D. So B is married to D. It means E is married to A. So E and A are married. And G is their child. So B, G, D, they are connected. Who is C? Now E and A are married and one F is here. It will come here, F. And another will be C. So C is son of A. So answer is D. A clock strikes once at 1 o'clock, twice 2 o'clock, thrice 3 o'clock, and if it takes 12 seconds to strike 5 o'clock, what is the time taken by it to strike 10 o'clock? So 5 o'clock means 5 times करती है, so 12 seconds लेती है, so 5 स्ट्राइक में 12 सेकेंड, तो 1 स्ट्राइक में 12/5 सेकेंड, और 10 स्ट्राइक्स में इंटू 10, so 24 seconds. So B is the answer. If second and fourth Saturdays and all the Sundays are taken as only holidays for an office, 4 Saturdays, 4 Sundays plus 2 Saturdays and 6. What would be the minimum number of possible working days on any month of any year? So minimum number निकालना, तो 28 is Feb and इसमें से 6 गए, so 22 days. Minimum में we have to do it 28 days. So B is the answer. The outer surface of a 4 by 4 centimeter cube is painted completely in red. यहाँ अगर हम फिगर देखें तो ये 4 by 4 का क्यूब है और इसको 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड किया गया है. सो 1 2 3 4 4. इसी तरह ये यहाँ पर हो जाएगा और इसी तरह ये यहाँ पर हो जाएगा सब साइड में. सो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स देखने हैं. तो बेसिकली जो कॉर्नर पर हैं ये सारे साइड्स ये पेंटेड हैं. अगर हम टॉप और बॉटम को देखकर डिस्कस करें तो ये जो 4 क्यूब्स हैं इनके बिलो जो क्यूब्स हैं और यहाँ पर जो 4 क्यूब्स हैं ग्राउंड पर जो आएंगे इन्हीं के बिल्कुल नीचे उनके अबव वो जो हैं ऐसे होंगे जिन पर कोई कलर नहीं है, अदरवाइज सबके ऊपर पेंट है. सो कैसे फाइंड आउट करें? 4 क्यूब ऑलरेडी विच इज 64 और अभी इसमें से हमने क्या किया कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, दिस एंड दिस हर साइड से.
सो दिस विल बी 4 माइनस 2. यहां से ये देखा जाए तो 2, सो दैट इज 2 क्यूब. 4 minus 2 cube. Now it will be like this. So that is 2 cube, which is 8. 8 जो होंगे वो बिना किसी कलर के होंगे. So answer is A. अगर फिजिकली जैसे आपको बताया कि यहां से 2 चले गए, यहां से 2 चले गए, मीन्स हर जगह से ओनली ये जो 4 हैं इनके बिलो एंड इन्हीं के जो बिलो बॉटम है उनके अबव वही क्यूब्स हैं जो बिना किसी कलर के होंगे. सो वी कैन मार्क विद देम अनदर कलर. इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 और इनके अंदर इस वाले क्यूब को छोड़ के उनसे जो नेक्स्ट है, इसी तरह यहाँ से जो साइड से आएंगे वी विल लीव देम इससे, और उनके इनसाइड इधर जो होंगे क्यूब, सो दैट बिकम्स 4 minus 2 क्यूब. Till 2:27 p.m. 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period is this. तो पहली क्लास यहाँ पर 11 o'clock से 2:27 और 4 पीरियड हुए हैं, 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल. तो एक फर्स्ट शुरू हुआ 5 मिनट्स, फिर दूसरा शुरू हुआ 5 मिनट्स, देन थर्ड पीरियड शुरू हुआ एंड वी गिव 5 मिनट्स एंड देन फोर्थ. इन बिटवीन 15 मिनट्स यूज हुए. सो 15 हम इसमें से 2:27 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो दिस कम्स 2.12 पे, मतलब जो क्लास को गिवन टाइम है दैट इज 11 to 2:12. सो 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2 एंड देन 2:12. और यहाँ कितने 60 मिनट्स 60 मिनट्स 60 एंड यहाँ पर 12. सो दिस इज 180 प्लस 12 इज 192. और इन्हें 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया गया. तो ये हो गया 4 and 8 means 48 minutes. So A is the answer. A cube has all its faces painted with different colors. So cube जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, वहां सेम कलर से पेंट था, लेकिन यहाँ डिफरेंट कलर से पेंटेड है. It is cut into smaller cubes of equal sizes such that the side of the small cube is 1/4 of the big cube. तो जैसे पिछली बार हमने 4 थी लेंथ और फिर 1 के साइज में क्यूब को कट किया था, तो टोटल क्यूब थे 4 क्यूब और यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब्स कट किए थे. तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है. तो सेम तरह से यहाँ पर क्यूब्स बने हुए हैं. द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड इज. सो वन साइड पेंट में क्या, अगर जो कॉर्नर के क्यूब्स हैं ये सब 2 साइड पेंट है, यहाँ से भी और इससे बैक साइड से भी. साइड वाले क्यूब्स दे विल बी एलिमिनेटेड. सिर्फ ये जो इन बिटवीन है ये रिमेनिंग हो जाएंगे. So this will be the cubes which we require. इसी तरह यहाँ पर ये 4 क्यूब. पिछले वाले एग्जाम्पल में ये थी सिचुएशन की कोई भी कलर नहीं है, तो आउटसाइड के सब हट गए थे, इन बिटवीन के 8 क्यूब्स आए थे. लेकिन यहाँ 4 on one side और फर्स्ट साइड पर 4 हमारे हैं,
तो 6 into 4 that is 24 is the answer. So answer is B. Each of the 6 different faces of a cube has been coated with different colors. That is V, I, B, G, Y, O and O. Following information is given. 1, 2, 3, 6 colors are there. So we have यहाँ कुछ conditions दी गई हैं. Colors Y, O, B are on adjacent. So Y, O बैक साइड वाला जो है और B हम ये फ्रंट पे कर लेते हैं. ग्राउंड पर दिस इज बॉटम वाले पे हम B करते हैं, तब ये तीनों एडजेसेंट हो जाते हैं. कलर्स I, G एंड Y आर एडजेसेंट. सो Y है, I यहाँ कर दिया, G ये फ्रंट वाला जो है G हो गया एंड Y ये एडजेसेंट हो गए. कलर्स B, G एंड Y. सो बॉटम एंड ये फ्रंट एंड Y, B, G, Y ये B एडजेसेंट हो गए. O, V, B R. O is back side. O, V, B. O जो है बॉटम से हो गया और ये वाला V हो गया. Which is the color on of the face opposite to the face colored with O. O के opposite तो G color आ गया. So G is the answer. C is the answer. Between 6 p.m. 7 p.m. the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at time is given. Suppose कितना चलता है 360 डिग्री. सो 1 मिनट में कितना चलता है 360 अपॉन 60 मीन्स 6 डिग्रीज चलता है. और जो आवर हैंड है वो कितना चलता है, वो 60 मिनट्स में 30 डिग्री चलता है. 6 से 7 आता है, या कहीं भी हम एंगल लें तो 30 डिग्री चलता है. तो 1 मिनट में कितना चलता है 30 अपॉन 60 मीन्स हाफ डिग्री. तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 6 माइनस हाफ मीन्स 5.5 डिग्री का डिफरेंस रहता है 1 मिनट में. अब क्वेश्चन को देखें तो मानते हैं हम कि x मिनट पर जो है ये सिचुएशन अराइज होती है जो क्वेश्चन में दी गई है कि मिनट हैंड जो है अहेड है आवर हैंड से. तो मिनट हैंड कितना चला x मिनट तक 6 डिग्री इंटू x इतना चला, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है. तो x मिनट में 6x डिग्री चला. सो दिस इज नाउ डिग्रीज, x इज मिनट्स. और जो दूसरा है दैट इज आवर हैंड वो पीछे है. तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस हाफ. ये हाफ डिग्री चलता है और ये कितना पीछे 3 मिनट पीछे है. तो x माइनस 3, तो ये डिग्री आ गया इस जगह पे होगी. और उधर से हम देखें यहां से ही 180 डिग्री हुआ 180. और 3 मिनट में कितना डिफरेंस होगा 5.5 इंटू 3 ये हो गया 16.5. तो डिफरेंस है इसमें 16.5. सो इतना ये चल चुके होंगे x मिनट पे, जो कि क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 96.5 और यहां से हो गया 6x माइनस x बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, ये 1.5 को हम इधर ले जाते हैं तो 196.5 माइनस 1.5 इज 195 इज इक्वल टू, यहां से ये हो गया 5.5x. तो x कितना हुआ 195 अपॉन 5.5. डेसिमल हटा दिया 0 हो गया. 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4. 9 टाइम्स 0. 11 से किया तो 3 टाइम्स एंड देन 60. तो 5 टाइम्स देन 550 मीन्स 4 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स. तो लगभग ये 36 मिनट के इक्वल. 6:36 p.m. C is the answer. Assume that the hour and minute hands of a clock move without jerking. The clock shows a time between 8 o'clock and 9 o'clock. The two hands of the clock are one above the other. After how many minutes
nearest integer will the two hands be again lying one above the other. यहाँ पर दिया गया कि ये क्लॉक है और क्लॉक में जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं 8 और 9 के बीच में, समवेयर हेयर, क्योंकि 8 पे तो कर नहीं सकते, 8 पे होगा 8:40, 8:40 पर नहीं करेंगे, इसका मतलब समवेयर हेयर कर रहे हैं। अब 1 घंटे बाद क्या होगा, 9:40 से ऊपर, मान लीजिए ये 42 है, हम रफली कहते हैं कि ये 8:42 पर था, कुछ भी हो सकता है 43 और समथिंग जब मैच करें। सो 1 घंटे बाद क्या होगा, दिस विल बिकम 9:42 अप्रॉक्स 1 घंटे बाद, और जो ये आवर हैंड चला गया 9:42 पर, एंड इसने कितना किया, 5 स्पेसेस को यहां से यहां तक कवर किया, आवर हैंड ने 5 स्पेसेस, 5 खाने चला, डिग्री में भी हम लिख सकते हैं 30 डिग्री चला। और जो मिनट हैंड है उसने कितना चला, पूरा घूम के वो फिर यहाँ पर आ जाएगा, उसने चला 60 स्पेसेस 1 मिनट में, और 60 स्पेसेस का मतलब 360 डिग्री चला। तो अभी क्या है, दोनों में जो डिफरेंस हो गया, पहले ही एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे थे, अभी 1 घंटे में जो डिफरेंस आ गया वो 55 स्पेसेस का आ गया, जिसे हम डिग्री में बदल सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। तो ये 55 स्पेसेस का आ गया, क्योंकि 60 स्पेसेस अगर 360 है या 5 स्पेसेस 30 है तो हम 55 को निकाल सकते हैं। अब 1 घंटे में इतने स्पेसेस का मूवमेंट हुआ, या कहें ये 5 स्पेसेस चला हैंड, आवर हैंड, और ये 55 स्पेसेस उससे आगे हो गया, क्योंकि ये डिफरेंस करके हमने निकाला, सो ये इतने स्पेसेस अहेड हो गया। लेकिन ये फिर से 60 स्पेसेस हो जाए, जो डिफरेंस है 60 स्पेसेस हो जाए, तो इसका मतलब उसी के ऊपर फिर से लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट्स में 55 स्पेसेस चला डिफरेंस से, तो 60 स्पेसेस होने में कितना समय लगेगा, तो रिवर्स लिखें हम, 55 स्पेसेस है 60 मिनट में, तो 60 स्पेसेस होगा कितने मिनट में, 60/55 इंटू 60, तो इतने मिनट्स आएगा। तो दिस विल बी सम 1 to 60 into 1.1, सम 65-66 के इक्वल आ रहा है रफली। सो दिस इज सी इज द आंसर, 65 इज आंसर, बिकॉज इसके नियर 66 नहीं है तो हम ले सकते हैं दिस इज 65। इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, थर्ड डे इज मंडे मीन्स 3rd तारीख, which one of the following will be the 5th day from 21st of this month, 21st से 5वां दिन 5th डे, तो ये मंडे है, तो हम अगर इसमें डिफरेंस देखें 21st -3 और इसे हम 7 से डिवाइड करें, +4 डेज, मतलब 2 तो पूरा कट गया, 4 दिन और आ गए, तो मंडे से 4 दिन जोड़े, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो फ्राइडे इज 21st, और उससे 5वां दिन, फ्राइडे में 5 और जोड़े, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो इट विल बी वेडनेसडे। आंसर इज सी। इसे दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि जैसे 3rd जो है मंडे है, उसमें 7 जोड़े तो आ गया 10th, ये भी मंडे हो गया, फिर इसमें 7 जोड़े 17th, ये भी मंडे हो गया, देन इसमें 7 जोड़े 24th, ये भी मंडे हो गया। हमें 21st से करना है,
21 से 5th होगा, 22nd, 23rd, 24th, 25, 26. 21st plus 5 is 26th डे। तो 24th मंडे आ गया, तो 25 ट्यूसडे आ गया एंड 26 जो है वेडनेसडे हो गया। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, ए सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, ए थर्ड बेल रिंग्स every 32 minutes. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time they will all ring together? जैसे कि यहाँ दिया गया कि बेल जो है 18 मिनट पे रिंग करती है, फिर दूसरी 24 एंड तीसरी 32 और फिर हमें सेम टाइम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकाल। तो जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी जब वो टुगेदर। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम ये तीनों लिख लेंगे, 18, 24, 32, 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 12 एंड 16, फिर 2 से करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर और जो नंबर मिलेगा उससे करेंगे 9, जहां नहीं डिवीजन होता उसे एज इट इज ले लेंगे, 6 एंड 8, फिर 2 से करेंगे 9, 3 एंड 4, फिर 2 से किया तो 9, 3, 2, फिर 2 से किया सो 9, 3, 1। हम मिनिमम जो है प्राइम नंबर्स में इसे बना लेते हैं, सो 3, 3, 1, 1। अब ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। 3 से एक बार और करेंगे, देन इट विल बी 1, सो 1, 1, 1 आ जाएगा। नाउ वी कैन स्टॉप। और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारे वैल्यूज आई। सो दिस इज, हम और भी नंबर ले सकते हैं, कभी 4 से कर सकते हैं, कभी लाइक यहाँ हम 4 से कर सकते थे। वी कैन हैव डिफरेंट नंबर्स। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही नंबर आए। तो अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, 4, 8, 16, 32 इंटू 9, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो ये आ गया 288 मिनट्स। सो इन्हें हमें आवर में चेंज करना है क्योंकि आंसर आवर में दिया गया है। सो इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 288 अपॉन 60 इज इक्वल टू, सो हमें ये मिनट्स हैं 288 और 60 से डिवाइड करना है, या हम कह सकते हैं 240, हमें पता है 4 घंटे के बराबर है। 60 इंटू 4 इज 240, सो 4 आवर हो गए और 240 हमने इसमें से घटाया तो 48 मिनट्स रिमेनिंग हुए। सो 4 आवर 48 मिनट्स एंड 4 आवर 48 मिनट्स 8 o'clock में हमें जोड़ना है। 8 o'clock में 4 hours 48 minutes, that is 12 hour and 48 minutes. So 12 into 48 hour. B is the answer. A cube has 6 numbers marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its faces. 3 views of the cube are shown below. What possible numbers can exist on the 2 faces marked A and B respectively on the cube? तो अगर हम सेकंड और थर्ड फिगर देखें, ये और ये वाली, तो 3 दोनों में टॉप पे है और इसका अपोजिट यहाँ नीचे होगा। सो सेकंड फेस 6 फेस होते हैं, इसमें 1, 2 है और 5, 6। सो 1, 2, 5, 6 साइड्स के फेसेस हैं। तो अगर हम इसे इस तरह से घुमाएं तो ये मूव कर जाएंगे, तो ये 4 फेसेस ही रहेंगे, 1, 2, 5, 6। तो अगर हम देखें अपोजिट पढ़ेंगे, 6 इज अपोजिट टू 2 क्योंकि मूव करेगा। अगर हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो 2 विल कम हेयर एंड दिस 1 विल कम हेयर। सो 5 इज अपोजिट टू 1, सो 6 इज अपोजिट टू 2 एंड 5 इज अपोजिट टू 1। अब हमने इसको एक और इधर टर्न किया तो 5 यहाँ पर आ गया, और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ 2 है जो कि अपोजिट टू 6 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा एक टर्न करने पे, और 3 एज इट इज ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो आंसर हो गया 8, 2 and 3. 6 squares are colored front and back red, R blue, B yellow, Y green, G and white, W and orange, O, and are hinged together as shown in the figure given below. If they are folded to form a cube, what would be the face opposite to the white? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 बॉक्सेस हैं,
6 मीन्स ईच विल बी वन फेस ऑफ द बॉक्स, तो हम किसी एक को ग्राउंड मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो मान लीजिए G इज अवर बेस। सो हमने G को बेस बना दिया। अब क्या हुआ कि हमें क्यूब बनाना है। सो व्हाट विल हैव, वी विल मेक इट स्टैंड। तो ये B जो है साइड में आ जाएगा। सो ये इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द क्यूब एंड वी कीप ऑन मार्किंग कि हमने क्या किया। सो वी मेड G एज ए बेस। अब हमने G के बाद B को खड़ा कर दिया, तो B ये खड़ा हो गया दिस साइड, जो बैक साइड है। और R जो है फोल्ड होके इधर आ गया, R फोल्ड होके इधर आ गया। Y जो है यहाँ खड़ा हो गया। फिर जो O है वो ऊपर चला गया, और W जो है साइड पे हो गया। तो W एंड B जो है अपोजिट हो गए। हम इसमें किसी भी एक को बना सकते हैं बेस। हम O को भी बेस बना सकते हैं कि हमने मान लीजिए यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देते हैं, O ले लिया। वी से दैट दिस इज O, इसे हमने बेस बना लिया। बेस जो है दिस वन, ये जो है O हो गया, द ग्राउंड वाल। देन अब हमने इस पे खड़ा कर देना है, तो कैसे करेंगे। W जो है ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो जहां W है वहीं पर आएगा। एंड Y जो है साइड में खड़ा हो जाएगा, Y यहाँ पर आ जाएगा साइड में खड़ा होके। G ऊपर चला जाएगा टॉप पे, और क्योंकि ये भी फोल्ड हो गए हैं तो B यहीं पे आ जाएगा और R इधर आ जाएगा दिस साइड। तो फिर भी W एंड B जो है अपोजिट टू ईच अदर है। सो आंसर इज C। 3 views of a cube following a particular motion are given below. What is the letter opposite to A? So A ये है। सो हम देख रहे हैं कि K अब यहाँ पर आ गया है एंड B is on the top। हम क्यूब को ओपन कर लेते हैं और पहली फिगर को देखते हैं। तो K जो है टॉप पे है, तो हम टॉप को अभी बिलो ले लेते हैं, बॉटम की तरह से ले लिया। इसके एडजेसेंट B है, हम बॉक्स को खोल रहे हैं B, और इसके एडजेसेंट A भी है, तो इसके एडजेसेंट A हो गया। हम इधर भी ले सकते थे A, वी टेक दिस वे। देन K के एडजेसेंट H और M भी हैं, तो H और M भी हो गए, H एंड M। जब K साइड होगा, क्योंकि अगर हम इन फ्लैप्स को फोल्ड करें तो ये सब खड़े हो जाएंगे, B H M A, K बॉटम हो जाएगा। और अगर हम K को टॉप कर लें और इन्हें नीचे की तरह फोल्ड कर दें, या K को साइड ले लें, सपोज K comes here, then H and M are its adjacent। K को यहाँ ले आएंगे, then the situation will be different। Now we see next figure BPH। B H is here, जो ये खड़ा करने पे एडजेसेंट हो जाएगी, इसकी एडजेसेंट P भी होना चाहिए। तो हम P यहाँ भी बना सकते हैं और P यहाँ भी बना सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, हम इसको P को टॉप पे फोल्ड कर देंगे। तो व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू A? अपोजिट टू A विल बी H। ये खड़े होने पे अपोजिट हो जाएंगे। सो आंसर इज A। इसको हम मार्क करके देख लें दूसरी तरह से, क्या हम सेम ही आंसर ऑब्टेन करते हैं। तो हम थर्ड फिगर से चलते हैं। B को हमने बेस बना लिया, H जो है उसका साइड का फ्लैप हो गया, ये खुल गया, एंड P उसके एडजेसेंट हो गया। सो दिस इज P। अब सेकंड फिगर पे आए तो H के एडजेसेंट जो है M एंड K हैं, तो ये खड़ा हो जाएगा H, और इसके एडजेसेंट यहाँ पर सपोज K आ गया, H खड़ा हो गया है, P भी खड़ा हो गया है, P H के एडजेसेंट है ऑब्वियसली, एंड H के एडजेसेंट K भी आना चाहिए। सो H के एडजेसेंट K है एंड H के एडजेसेंट M भी आना चाहिए। सो M कैन बी टॉप ओनली। सो लेट्स से M इज हेयर, जो कि K के एडजेसेंट भी है, तो ये टॉप पे आ जाएगा घुमाने पर। अब बाकी बचा A।
A is adjacent to B and K और ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि A एंड H अपोजिट टू ईच अदर आ रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से करें, आंसर इज A। A cuboid has 6 sides of different colors. The red side is opposite to black. So हम क्यूब बनाएंगे और क्यूब में कलर्स को मार्क करेंगे कि क्या कलर्स हैं। हम एक क्यूब लेते हैं और क्यूब में ये कहा रेड साइड इज फेस डाउन, तो टॉप इज रेड एंड रेड इज अपोजिट टू ब्लैक, सो बॉटम इज ब्लैक, ब्लैक इज बॉटम। देन वी हैव blue side is adjacent to white, so let's say this is blue, and जो इसके साइड बैक में है वो white है, तो 4 कलर हो गए। एंड ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू, सो जो फ्रंट है वो ब्राउन हो गया बिकॉज वो ब्लू के एडजेसेंट है। ब्लू के एडजेसेंट वाइट भी है और ब्लू के एडजेसेंट ब्राउन भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अपोजिट टू ब्राउन? सो ब्राउन के अपोजिट तो वाइट होगा, सो आंसर इज सी। How many times are an hour hand and a minute hand of a clock at right angles during their motion from 1 p.m. to 10 p.m.? और ये 90 डिग्री, 3, 12, 6 एंड 9, तो यहाँ तो ये 90 डिग्री पर है, यहाँ भी ये 90 डिग्री पर, लेकिन जब 6 और 3 और 9 और 6 पर है तब नहीं है, क्योंकि 6 और 3 पे मीन्स 6:15 हो चुका है, और 6:15 होने का मतलब 15 मिनट्स में आवर हैंड जो है कुछ तो मूव कर गया होगा। एंड वो कितना मूव करा होगा, क्योंकि जो 60 मिनट्स में आवर हैंड करता है 30 डिग्री मूव, और 15 मिनट्स में करेगा 30/60 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15/2। इतने डिग्री जो है आगे बढ़ चुका होगा 6 से, तो ये 90 नहीं होगा, तो 2 टाइम्स 90 है। और 1 to 10 में 1 PM to 10 PM में 10 घंटे हुए, में 9 आवर्स हुए, इन बिटवीन 9 आवर्स हुए। सो 9 आवर्स में कितना होगा, 9 into 2, 18 टाइम्स जो है वो। सो सी इज द आंसर। 90 डिग्री पे होंगे 18 टाइम्स। March 1 will be March 1, 2008 was Saturday. Which day was it on March 1, 2002? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 365 जब डेज होते हैं जबकि नॉन लीप ईयर है, और 366 होते हैं जबकि लीप ईयर है। इसमें 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे होता है, इसमें 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज होते हैं। सो 2008 एंड 2002 के बीच में 6 ईयर्स हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से 6 डेज तो हो ही गए, 6 डेज 1 डे की वजह से। और लीप ईयर्स कितने हैं इसमें? सो 2004 को अगर हम देखें तो ये लीप ईयर है, और 2008 दिस इज ऑल्सो लीप ईयर। सो 2 लीप ईयर हो गए, तो इनका 1 तो यहाँ जुड़ चुका है, तो 2 डेज और आएंगे, 8 डेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एंड 8 डेज में 7 डेज का एक वीक बनता है, तो प्लस 1 डे। अब क्या है, ये 1 डे इसमें हम बैक जा रहे हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स पहला एक डे जुड़ चुका है। तो 2002 में अभी सैटरडे है 8 में, तो बैक एक डे जाएंगे, तो मीन्स फ्राइडे इज द आंसर, बी इज द आंसर। 6 faces of a cube are numbered from 1 to 6, each face carrying one different number. Further, the face 2 is opposite to face 6. So this is one face. Now we know how to open the cube. So 2 on one side and on other sides 1, 1, 1. So it says
2 is opposite to 6, 2 is opposite to 6, 1 is opposite to 5, 1 is opposite to 5. The phase 3 is between the phase 1 and phase 5. So 3 is in between. खड़ा कर देंगे तो ये in between हो जाएगा. The phase 4 is adjacent to phase 2. phase 4 ये टॉप पे आएगा, इसके adjacent हो जाएगा 2 के. Which one of the following is correct? The phase 2 is adjacent to phase 3. Yes, this is adjacent. The phase 6 is between the phase 2 and the phase 4. No, it is not. The phase 1 is between the phase 5 and the phase 6. No. So A is the correct answer. A watch showed a time of 14 minutes past 9 hours and 14 minutes. So this is, यहाँ कहीं सुई हुई, ये 1 स्पेस है, ये 3 है, ये 12 है, 9 एंड 6, और ये जो सुई है आवर हैंड, ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई होगी. अब ये कितनी आगे बढ़ गई है ये हमें पता लगाना है. तो इसके लिए जैसे कि हमें चेक करना है 14 मिनट्स में आवर हैंड कितना मूव किया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बाद में हमारी जो कि मिनट हैंड थी अब वो आवर हैंड हो गई है चेंज करने पे, और ये जो कि आवर हैंड थी ये बन गई है मिनट हैंड. तो हमें अगर इसकी पोजीशन पता होगी तो हम बता सकते हैं. तो जैसे कि हम जानते हैं 30 डिग्री होता है जो एक 8, 9 और 9, 10 के बीच में. सपोज दिस इज क्लॉक, तो ये 9 है, ये 10 है, तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है. सो 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 स्पेसेस, 5 स्पेसेस में बटा है. और ये हम देखें कितनी डिग्री घूम गया है. हमें पता है कि 60 मिनट्स में ये घूमा है 30 डिग्री. तो 14 मिनट्स में ये घूमेगा 30/16 to 14, तो ये आएगा 7 डिग्री. सो 7 डिग्री घूम गया है ये नीडल. तो 7 डिग्री कितने स्पेसेस के बराबर होगा? 5/30 into 7. यहाँ से तो ये हो गया 6 एंड ये आ गया 1.1. अब 1.1 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 1 ही हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं 1.5, सो इसे हम 6, अगर ये इसका अगला डिजिट पे डिपेंड करता है कि ये 5 है तो हम 6 बना लेंगे, बट 1.5 या उससे अबव को हम 2 ले सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी 1.1. राउंडिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा है. तो अब ये क्या हुआ, 14 स्पेसेस जो है पीछे है, क्योंकि एक ही स्पेस बढ़ा इधर. सो यहाँ पर अभी 14 बचे, तो 14 मिनट्स रह गए हैं 3 बजने में. सो आंसर इज सी, 14 minutes to 3. Each of the 6 faces of a cube is numbered by one of the digits from 1 to 6. This cube is shown in its 4 different positions in the figure. So ये नीचे दी गई 4. अब हमें कंसीडर करने हैं ये स्टेटमेंट्स. Figure 2 and 3 are sufficient to known as to which face is opposite to the face mentioned 6. 2 and 3. So ये 2 है और ये 3 है, और 6 के अपोजिट क्या है हमें ये देखना है. तो ये 6, 4 है एंड 1 एंड 5. तो हम यहाँ फिगर बनाते हैं. पहला केस कह रहा है फिगर्स 2 and 3 आर सफिशिएंट टू नोन एज टू विच फेस इज अपोजिट टू द फेस नंबर 6. सो सेकंड एंड 3 बनाते हैं. सो दिस इज सेकंड एंड यहाँ 1 इन बिटवीन है एंड 2 and 4 आर एडजेसेंट. 2 and 4 आर एडजेसेंट. एंड देन थर्ड में 5 इन बिटवीन
and 6 and 4 are adjacent. तो अगर हम इससे कंप्लीट पिक्चर बनाना चाहें तो क्या हुआ, 1 के एडजेसेंट 4 है एंड 1 इनके एडजेसेंट 5 भी है 4 के, तो यहाँ 5 आ गया एंड 5 के एडजेसेंट 6 है, 6 हो गया, बट 6 एंड 4 भी एडजेसेंट हैं, तो ये 6 यहाँ ना होके यहाँ पर हम लेते हैं, तो जब ये टॉप पे जाएगा देन इट विल बी 3 हेयर. सो इससे हमें पता चल गया कि 6 के अपोजिट 1 आएगा. सो ये ट्रू है. नाउ सेकंड में सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू नोन एज टू विच फेस इज अपोजिट टू द फेस नंबर्ड 4. तो 4 के अपोजिट 3 आएगा, तो ये भी सही हो गया. देन 1 and 4th are sufficient to known as to which face the opposite to the face number 3. तो ये दोनों भी बनाते हैं. 1 का है 6 in between, 2 and 3 साइड में adjacent है. Then 4th में 6 is here, 4 and 2, so 6 में 2 and 4, so we make 4 here because we have taken 3 here opposite to 3. So yes, we can have this 3 here and then rest of them are there, so 3 and 4 are opposite. So this is D is the answer, already marked. 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. All the 3 begin to toll at 8 am. At what time will they toll together again? तो जैसे कि डिस्कस किया था कि एलसीएम लेना होता है ऐसे केस में, ऑलरेडी हम बता चुके हैं. सो 9, 12, 15, सो 3 से किया, 3, 4, 5. नाउ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे तो ये दिस विल, अदरवाइज दीज आर प्राइम नंबर्स. सो 3 into 3 into 4 into 5, 20 into 6, 120 मिनट्स पे एंड 8 AM शुरू हुआ था, तो 120 मिनट्स हुआ 2 hours 9. So 20 into 9 is 180 minutes. 180 minutes means 3 hours. And 8 AM शुरू हुआ था, 8 AM plus 3 hours is 11 o'clock. So C is the answer. Consider the following pictures of the dice and we have to tell what is number opposite to 3. So we can make 2 figures. 6 is on top एंड इसके एडजेसेंट हैं, बॉटम की तरह ले लेते हैं इसे, 2 and 3. 6 के एडजेसेंट 2 and 4 भी हैं, तो 4 विल बी हेयर. एंड 6 के एडजेसेंट 4 and 5 भी हैं, सो 5 इज एंड 5, 4 एडजेसेंट हैं एंड 2, 4 एडजेसेंट हैं एंड 2, 3 एडजेसेंट हैं. And then last is 1, 4, 2, 4, 2. So 1 will be here on top, it will go, but it is on bottom. So 3 के opposite जो आ रहा है 4 आ रहा है. So B is the answer. If A, B, C, D, E and F, not necessarily in that order, are sitting on 6 chairs regularly placed around a round table, it is observed that, so A, B, C, D, E, it is observed that A is between D and F. A is between D and F and it will be 6 places. So 6 we can have 36 upon 6 means 60 डिग्री के एंगल पर बैठे हुए हैं. ये 60 हो गया और यहाँ तक 120 डिग्री. So then C is opposite to D, C is opposite to D,
D and E are not on neighboring. D and E are not, so E will be here. So A, B is remaining. Which one of the following pairs must be sitting on neighboring chairs? This is AB, not CE. CER, yes. BF is not. AC is. So CE is the answer. B is the answer. Consider the following figure. P is 300 kilometers. So this is 300 from O, and Q is 400. Q is 400 from O. R is exactly in the middle of Q and P. Middle. The distance between Q and R, this distance is, so first we have, this will be under root 400 square plus 300 square, so 1600 means we can take 100 square outside, so उसका अंडर रूट लेंगे तो 100 हो जाएगा. अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, सो ये 5 आ जाएगा. सो 500, सो उसका आधा मीन्स 250, एंड डिस्टेंस बिटवीन Q and R 250 kilometers. So the answer is A. Ina was born 4 years after her parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Ina, who is 13 years old. At what age did Anna's father get married? So यहाँ पर लिखा गया है कि एना जो है 13 years की है. So 13 years old Anna और 24 years older एना की मदर है, so that is 37 years, and her mother is 3 years younger than her father, तो इसमें 3 और जोड़ लेंगे, which is 40 years. At what age did Anna's father get married? तो 40 ईयर फादर की एज आ गई, 40 में से 13 घटा दी, तब उस एज में एना का बर्थ हुआ था. सो दिस इज 27, और 4 ईयर बाद में हुआ था, 4 इयर्स घटा दिए, सो 23 इयर्स. सो आंसर इज बी. इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एना's मदर इज 24 इयर्स older to Anna, and Anna was born after 4 years of marriage. So 24 minus 4, तो ये 20 years की थी जब इनकी मैरिज हुई मदर की, और 4 years बाद 24 की एज में एना का बर्थ हो गया. एंड द मदर इज यंगर देन हर फादर, that is 3 years. So 20 plus 3 is 23 years. So we can answer in many ways. So next is, in 5 flats, one above the other, live 5 professionals. The professor has to go up to meet his IAS officer friend. So IAS lives up and professor lives somewhere below. The doctor is equally friendly to all and has to go up as frequently as go down. So doctor lives somewhere here and is going up and down. The engineer has to go up to meet his MLA friend, above whose flat lives the professor's friend. So professor का friend IAS है, यहाँ कहीं MLA रहते हैं, और इंजीनियर भी ऊपर जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं डॉक्टर से ऊपर है कि नीचे या प्रोफेसर से. So engineer has to go up. Okay. From the ground floor to the top floor, in what order do the 5 professionals live? So engineer may be here और engineer may be here. अब यहाँ इंजीनियर की पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर 3 के क्लियर हो गई, IAS, MLA, डॉक्टर. सो जिसमें ऊपर से देखें
IS is in D. So D is the answer. बाकी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया IS, MLA, डॉक्टर, ये तीन, जबकि इन तीन में MLA है एंड में, जो कि नहीं ठीक है, तो ये डिस्कार्ड हो गए और इसके हिसाब से प्रोफेसर एंड इंजीनियर. सो डी इज द आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन that follows. In the figure shown above, OP and OQ are two plane mirrors kept perpendicular to each other. तो ये OP1 and OP2, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है. So these are at 90 degree. S is the direction of a beam of light falling on the mirror OP1. The direction of the reflected beam of the light from the mirror OP2 will be. तो पहले OP1 से OP2 जाएगी और OP2 से फिर रिफ्लेक्ट होगी. सो यहाँ इसकी डायरेक्शन जो भी है, देन इट विल बी गोइंग टू, तो होगा क्या कि जिस एंगल पे ये फॉल हुई है उसी एंगल पे रिटर्न होगी. मान लीजिए ये यहाँ इस पे वर्टिकल करें, तो ये एंगल को अगर हम दिखा देते हैं कि दिस इज सपोज थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ से थीटा एंगल पर P2 पर जाएगी. दिस विल, वी कैन मेक ए फिगर हेयर. ये इस तरह से है कि यहाँ पर आई है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा डिग्री वर्टिकल से है, तो ये थीटा डिग्री ही इधर चली जाएगी. दिस विल बी थीटा. एंड जो ये एंगल थीटा बनाएगी, तो हॉरिजॉन्टल से कितनी बना रही है, 90 माइनस थीटा बना रही है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. ये तिर्यक रेखा भी है, ठीक है. सो देन इट विल गो फ्रॉम हेयर, और ये एंगल कितना होगा, इक्वल होगा 90 माइनस थीटा. तो हॉरिजॉन्टल से ये 90 माइनस थीटा ही बना रही है, जो यहाँ पर भी बना रही थी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई. लेकिन इसमें ये आ इधर से रही थी और इसमें ये इधर जा रही, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन ये जो है पैरेलल टू ईच अदर हैं. सो इट इज रिटन ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन S. सो इसे S लिखा गया है. At 45 degree to the direction S, opposite and parallel to the direction S. So ये correct है, C. At 60 degree in the direction of S. C is the correct answer. Consider the figure given below and answer the questions that follow. What is the minimum number of different colors required to paint the figure given above such that no two adjacent regions have the same color? 4 बॉक्सेस अगर सराउंड कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हमें 3 चाहिए. बिकॉज सपोज वी टेक वेयर 4 सराउंडिंग आर देयर, सो वी color 1, then we take color 2, then 2 we can take here also, and then we have 3, and then we can have 3 here also. So 1 के adjacent हो गया 1 3 and 2 2, but adjacent same नहीं है. Let's take this one. So 1 2, we mark it 3, so we can give 3 to this also. So minimum 3 colors are required. A is the answer. In a queue, Mr. X is 14th from the front and Mr. Y is 17th. यहाँ पर दिया गया है कि in a queue, Mr. X is 14th from the front row. So एक ये queue है एंड ये स्टार्ट है, फ्रंट है, और 14th है मिस्टर एक्स, एंड मिस्टर वाई 17th फ्रॉम द एंड. यहाँ से मिस्टर वाई है और ये 17th है, मतलब इनके यहाँ 16 और लोग हैं, 17वें ये हैं, यहाँ 13 लोग और हैं और 14वें ये हैं. सो वाइल मिस्टर जेड इज एग्जैक्टली इन बिटवीन मिस्टर एक्स एंड वाई, सो Z कहीं यहाँ पे हैं जो एग्जैक्टली इन बिटवीन.
if Mr. X is ahead of Mr. Y, yes, Mr. X is ahead, and there are 48 persons, so 48 persons are there. How many persons are there between Mr. X and Mr. Z? तो हमें ये निकालना है। तो हमने जैसे अभी कहा 16 ये 13 ये हैं और 2 ये हो गए 14th और 17th, तो टोटल हो गए 16 प्लस 13 प्लस 2, या आप कह सकते हैं 17 प्लस 14, ये ए की वैल्यू आएगी, तो ये हो गया 31। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये 31 आ गया, सो 31 हो गए। 48 में से 31 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7 and 1 17। Z जो है इन बिटवीन है, तो ये क्या हुआ, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, और ये जो है यहाँ से 9वां नंबर हो जाएगा X से। तो Z और X के बीच में 8 है, सो 8 इज द आंसर। आंसर इज C।